বানারহাটে লায়ন্স ক্লাবের প্রস্তাবিত চক্ষু হাসপাতালের জমি ঘিরে ফের দেখা দিয়েছে বিতর্ক। লায়ন্স ক্লাবের আবেদনের ভিত্তিতে হাসপাতাল তৈরির জন্য রাজ্য সরকার 2023 সালের সেপ্টেম্বরে 99 বছরের লিজে একটি জমি তাদের হস্তান্তর করে। ক্লাব জানায় তারা 6,25,000 টাকা সেলামি ও বার্ষিক খাজনা দিয়ে জমিটি বৈধভাবে পেয়েছে। জমিটির রেজিস্ট্রি খতিয়ান তাদের নামে। তবে বুধবার কিছু ব্যক্তি হঠাৎ ওই জমিতে ঢোকার গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। লায়ন্স ক্লাব বিষয়টি বানার থানায় জানিয়ে শনিবার একটি লিখিত অভিযোগ করলে পুলিশের হস্তক্ষেপে শনিবার দুপুরে জমিটিতে ঢোকার গেটে লাগানো তালা খোলা হয়। তালা ঝুলিয়ে দেওয়া পক্ষের দাবি জমিটির মালিক তারাচাঁদ আগরওয়াল, যিনি জাফর খানকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছেন। তাদের অভিযোগ জেলা প্রশাসন ভুলভাবে জমি লায়ন্স ক্লাবকে হস্তান্তর করেছে এবং বিষয়টি নিয়ে তারা জলপাইগুড়ি আদালতে মামলাও দায়ের করেছেন। আদালত স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তী শুনানি 16 জুলাই। এই কারণে তারা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, জমিটির পূর্বতন মালিকের লিজ বাতিল হয়ে যাওয়ার পরই তাদের আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার জমিটি তাদের দিয়েছে। পূর্বতন মালিকের পরিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকেও তারা আদালতে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। তারা জানান, আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশ থাকা সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তি জমিটিতে ঢোকার দরজায় তালা ঝুলিয়ে ভেতরে অবৈধ নির্মাণ কাজ শুরু করে জমি দখলের চেষ্টা করছেন। তারা সেই সমস্ত ব্যক্তির নামে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। সমস্যা মিটিয়ে দ্রুত হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু করা যাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। অ্যাপ্লাই করে এই ল্যান্ডটা আমরা পেয়েছি ফর আই হসপিটাল। প্রপার পেপার আমাদের লিজ ডিড করা আছে, আমাদের তার মিউটেশন সার্টিফিকেট এভরিথিং করা আছে, আমরা তার সেলামি টাকা জমা করেছি। ইভেন আমাদের প্রত্যেক বছরে আমাদের লিজ রেন্ট আমরা ওটা পেমেন্ট করে যাচ্ছি। এটা ল্যান্ডটা কারা পেয়েছে সরকারের থেকে? লায়ন্স ক্লাব অফ বানারহাট। লায়ন্স ক্লাব অফ বানারহাট। আজকে সমস্যাটা কী হয়েছে? আজকে সমস্যা এরা এই রাজেশ ঠাকুর আর এরা হঠাৎ করে এখানে এসে তালা মেটেছে। তালা মেটেছে এবং শুধু তা না, ভিতরে ওদের যে সিঁড়িটাতে কোনো র্যাম্প ট্যাম্প কিছু ছিল না। হঠাৎ করে র্যাম্প করে ওখান থেকে ওরা বাইক এখানে ঢোকানো ছিল। যার জন্য আমরা এটা থানাতে কমপ্লেন করেছি। থানাতে কমপ্লেন করার পরে থানা আইসি আজকে একে পাঠিয়েছেন, ধরণীবাবুকে পাঠিয়েছি। রেজিস্ট্রি খতিয়ান মিউটেশন তিনটা কি হয়ে গেছে লায়ন্স ক্লাবের নামে? তাদের বক্তব্য কি, তারা কেন তারা মানলেন? তারা এদের বক্তব্য এরা জানে, ওরা আমরা বলতে পারবো না। এরা বলছে যে ওরা গভর্নমেন্টের মানে ডিএমের এগেন্স্ট ওরা কেস করেছে। আচ্ছা, এই ল্যান্ডটা আমাদের ছিল, তোমরা ওদেরকে কী করবে সেটা তোমরা থানায় কমপ্লেন করেছিলেন আজকে? আজকে তারপরে পুলিশ প্রশাসন এসছে। হ্যাঁ, এখন কি আপনারা কি পুলিশের কাছে তালা খোলানো হচ্ছে? তালা খোলানো হচ্ছে। তালা আইদার ওরা যদি খুলে দেয় ঠিক আছে, নাহলে পরে আমরা কাটবো। এইভাবেই করা আছে। हम लोग का पक्ष ये है कि ज़मीन इन लोग झूठ फूट के एक तो कागज़ बनाए, कागज़ बनाने के बाद गाड़ी घुसाए, कभी बोरिंग करता है, कभी ताला मारता है। हमारा पास में हमने कोर्ट में किया, हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, कागज़ है, ज़मीन के ऊपर में केस चल रहा है, इंजेक्शन ऑर्डर है। हम लोग उसी को लेकर के ताला मारा, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती ताला खुलवाया। दादागिरी जैसे उल्टा पुल्टा बोल करके ज़मीन माफिया ये वो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल करके उन लोगों ने ताला खोला। अभी हम लोग थाना में जाएंगे। थाना में हम लोग को 4 बजे बुलाया है। अब थाना से क्या सुराह होता है देखते हैं। ये जो ताराचंद बिल्डिंग है और इसके साथ जो जमीन है, इसका पावर ऑफ अटॉर्नी किसका पास है? मेरा पास है जाफर खान। अच्छा, और जो कोर्ट में जो आप लोग इंजंक्शन लिए है, यहाँ पे देखा टेम्पोररी इंजंक्शन है 16 तारीख तक। 16/7 तक तो है। ये किस जमीन के ऊपर में इंजंक्शन है? ये इसी जमीन के, खाली जमीन के ऊपर। अच्छा। ये ताराचंद बाबू का ही जमीन है। अच्छा ये ताराचंद बाबू का जमीन है। अच्छा, ये तो पार्किंग के लिए रखा गया, बाइक उठ पार्किंग करने के लिए, लेकिन इन लोग जबरदस्ती बोल रहा है कि हम लोग का है। अच्छा। आपका नाम और परिचय? जाफर खान। स्थिति में कानूनी रूप से लायंस क्लब ऑफ बानारहाट का प्रॉपर्टी है और लायंस क्लब ऑफ बानारहाट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। बानारहाट में एक लायंस का आई हॉस्पिटल होगा, जो कि सराउंडिंग लोगों के लिए, यहाँ का जो जनवासी है, जो वासी है यहाँ के, उनको सुविधा के लिए आंखों का इलाज हम लोग बानारहाट में उनको कम से कम और संभव हो तो फ्री में यहाँ दे सके। इसके लिए हम लोग लायंस क्लब ऑफ बानारहाट ने एक उद्योग लिया था। इसी क्रम पहले किसका था और आप लोगों को कैसे मिला? इसी क्रम में यह जगह देखिए, यहाँ हम लोग को जो नॉलेज था, सभी को यह इंफॉर्मेशन था, ये वैकेंट लैंड ताराचंद अग्रवाल जी का जमीन था। तो ताराचंद अग्रवाल जी का ये जमीन लीज में था, हम लोग को नॉलेज में था। तो हम लोग ने उनसे भी यह आवेदन किया था, क्योंकि उन्होंने हमको कॉन्सेंट दिया था। लायंस क्लब को वो बहुत अच्छा से इख्तियार करके मानते थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह जमीन हम आपको आई हॉस्पिटल के लिए देंगे। शुरू में हम लोगों ने एक्चुअली उनको अपील किया था कि जब हम लोग कैपेबल हो जाएंगे, लायंस क्लब उस स्थिति में आ जाएगी हॉस्पिटल खोलने की, तो आप अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। तो क्या हुआ कि जब हम लोग लास्ट 2017 तक
इसका अप्लाई किए, उनसे अपील किए कि ये ज़मीन हमको दीजिए, तो किसी कारण से वो ज़मीन वो हमको नहीं दे पाए और बाद में उनका देहांत हो गया था उसी दौरान में। तो हमने बाद में इस ज़मीन की स्थिति को पता किया गवर्नमेंट के आरटीआई के माध्यम से, ये ज़मीन एक्चुअली ज़मीन का वास्तविक स्थिति क्या है, तो मालूम चला यह ज़मीन पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन आता है। तो हम लोगों ने माननीय पश्चिम बंगाल सरकार का जो ऑफिशियल जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैंने, हमारे क्लब ने, यहाँ का जो ऑफिशियल बॉडी ने इसका लीज के लिए हमने अप्लाई किया, जो नवान्न प्रोसेस वाइज नवान्नों तक पहुंचे और हम लोगों को गवर्नमेंट ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने नवान्नों के माध्यम से हमें यह लीज दिया और हम इस लीज के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो पेमेंट देना पड़ता है, जो खतियान लेना पड़ता है, जो म्यूटेशन लेना पड़ता है, वो सब कार्यवाही करने के बाद यह जमीन हमारा लायंस क्लब ऑफ बानाघाट के नाम पर हो चुका है। इसके बाद ये खतियान है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये सब प्रोसेस करने के बाद कानूनी तरीके से जो आई हॉस्पिटल ग्रीन प्रोजेक्ट लायंस क्लब ऑफ बानाघाट का उसका कार्यक्रम चालू किया। इसी क्रम में पहले हम लोगों ने इसको घेराव किया, जमीन का जो प्रोसेस है पोजीशन को हमने लिया। इसके बाद यहाँ हमने पानी के लिए उसको बोलते हैं क्या, बोरिंग किए। इसके बाद इस जगह का सफाई हुआ, साथ ही इस ड्यूरेशन अभी क्या प्रॉब्लम हुआ जो देखा ताला लग गया था? कोर्ट में यदि किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है, पश्चिम बंगाल में ऐसा, भारतवर्ष में ऐसा बहुत सारा इतिहास रहा है। एक समय एक जमीन किसी और का रहा है, दूसरे समय में सरकार ने उस एरिया के विकास के लिए किसी और संस्था को वो जगह दी है और वो जगह काम करती है, तो पुराने वाली संस्था हो सकता है उसको लगा वो ऑब्जेक्शन कर सकती है। ये उनको कानूनी अधिकार कानून ने दिया है, सरकार ने दिया है, तो वो जा सकते हैं। किंतु उन्होंने उस प्रक्रिया के बावजूद भी उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमारे एरिया में घुसकर कानून का उल्लंघन किया है। हमारा इस संस्था का ऑब्जेक्शन ये है कि आप कानून के पास जाइए, कोर्ट कचहरी है, सरकार के पास जाइए, अपना आवेदन रखिए। यदि कोर्ट हमको बोलती है तो हम सुनेंगे, कोर्ट का बात सुनेंगे। बट आपने पिटिशन दिया, इंजंक्शन हुआ, इंजंक्शन के बाद इंजंक्शन का लॉ एंड ऑर्डर को वॉइड करके आपने वहां पे अनऑथोराइज तरीके से उस जगह के डेमोग्राफी को चेंज किया। इतना ही नहीं सर, वहां ताला लगाने के बाद उन्होंने जो बगल का इलीगल बिल्डिंग है वो भी ताराचंद बाबू का एक समय लीज लैंड था। और आज का डेट में आप पता कर सकते हैं, आप उस पेपर पर आप आरटीआई कीजिए बीएलओ डीएलओ में, अपने आप बीएलआर और डीएलआर ऑफिस में अपने आप उस जमीन का स्टेटस मालूम चल जाएगा कि वो। इसके बावजूद वहां से कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। यदि उनका पिटीशन जायज होता तो वो कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। इंजंक्शन है कि इंजंक्शन पीरियड में वो हमारे जमीन में आके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पकड़ लेता हूं, हम कानून के हिसाब से यदि मानेंगे तो माननीय हाई कोर्ट ने इंजंक्शन दिया, उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ था, तो उस इंजंक्शन का हम लोग समर्थन करके हमने अभी कोई निर्माण कार्य नहीं किया है, हमने उसको पूर्व स्थिति में रखा है। किंतु उन्होंने पिछले 2 दिन पहले इस एरिया में हमारे जो लैंड है उस लैंड में उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। क्या कर सकते हैं आप लोग? क्या ये मैटर को नेक्स्ट टाइम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए? हमारा कोर्ट में यह मामला हम पार्टी के हिसाब से जा चुके हैं और हमारे पास जितना जरूरी कागजात होना चाहिए वह है। किंतु यहाँ बात कुछ छुपा हुआ बात है, वो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। यहाँ पिटीशन देने वाला आदमी कौन? जाफर खान। ठीक है, जाफर खान पिटीशन है, पिटिशनर के हिसाब से उनको इंजंक्शन मिला तो हमसे 1 to 1 बात कर सकते थे कि ये हम लोगों ने किया है। तब तक हम लोग की संस्था में लोग उनको भी जान पहचान है, बोल सकते थे कि अभी ये स्थिति है, आप लोग निर्माण कार्य मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, हम लोग कोर्ट के हिसाब से चलेंगे, तो हम लोग मान लेते। किंतु उन्होंने दादागिरी दिखाया। क्या दिखाया? राजेश ठाकुर और 2 व्यक्ति जो भूमाफिया है, सो कॉल्ड भूमाफिया, राजेश ठाकुर का बैकग्राउंड पता कीजिए। वो कौन है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आके हमारे शटर में ताला लगाएगा और हमसे झमेला करेगा?